everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी थी, 3.2 हमारी चल रही थी, हाफ हो चुकी है। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। क्वेश्चन है इफ वी हैव द मैट्रिक्स y then find the matrix x. Y matrix is given. Matrix y is given as this is a 2 by 2 matrix which is 3 2 1 4 and a relation is given. The relation is 2x plus y. It is equals to a matrix that is 1 0 minus 3 and 2. Then find the matrix x. We have to find matrix x. क्या करते हैं मैट्रिक्स x फाइंड करने के लिए? जो हमारे पास y है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। We have 2x plus y which is 3 2 1 4. It is equals to a matrix 1 0 minus 3 and 2. Taking this matrix on the right side, it becomes negative of the matrix, means 1 0 minus 3 and 2. ये राइट साइड जाएगी तो क्या होगा? नेगेटिव 3 2 1 एंड 4। और इस नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा एंड दिस विल बी प्लस। ये हो जाएगा। सो वी हैव 2x, इट इज प्लस 1 एंड माइनस 3, इट इज माइनस 2, इज 0 एंड माइनस 2 minus 2, minus 3 and minus 1 it is minus 4, plus 2 and minus 4 it is minus 2. Now divide by 2, so we got x is equals to 2 से डिवाइड करेंगे। So when we divide a matrix by a number, by a scalar, all the elements are divided. So divided by 2, we got it is minus 1 minus 1 minus 2 and minus 1। ये हमारी मैट्रिक्स x हो जाएगी। मैट्रिक्स से क्वेश्चन है if twice of this matrix plus second matrix it is equals to the third matrix then find the value of the variable x and y। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 2 को स्केलर नंबर है, स्केलर से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड। सो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, so it becomes 2 6 and 0 and 2x and plus the matrix y 0 1 2, it is equals to 5 6 1 8, second order matrix. These are added, so add them, दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करते टाइम मैट्रिक्स में क्या है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। सो 2 plus y 2 plus y, then second 6 plus 0 it is 6, 0 plus 1 it is 1 and 2x plus 2 it is 2x plus 2. This matrix is equals to 5 6 1 and 8. These two matrices are equal. If these are equal, corresponding elements will be equal. You can check this 6 equal to 6 1 equal to 1, ये तो equal है। यहाँ वेरिएबल थे तो इसको भी इसके इक्वल रख देते हैं। So 2 plus y is equals to 5, it is equals to 5 and 2x plus 2 it is equals to 8. So from here we get y is equals to 3 and from here we get 2x equal to 6 means x is equals to 3. x और y दोनों की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 11 12 ये इसी टाइप के क्वेश्चन से सारे के सारे सेम पैटर्न से हैं, आप इजीली कर सकते हैं इनको। 13 क्वेश्चन है, 12 तक सारे वैसे ही थे जैसे 9 था। 13 क्वेश्चन fx is given as cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 and 0 0 1, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एंड क्वेश्चन इज शो दैट fx multiply fy it is equals to f of x plus y। ये हमने शो करना, दोनों साइड हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। f of x plus y लिखते हैं, f of x plus y क्या बन जाएगा भाई, f x plus y। You can see easily fx अगर cos x minus sin x sin x cos x है तो x plus y क्या होगा, रिप्लेस दिस x by x plus y, इसको x plus y से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनेगा, cos x plus y then minus sin
x plus y and next element is 0. Okay, then sin x plus y, next element is cos x plus y and the next element is 0. Then 0 0 and 1. This is the right hand side. ये हमारी राइट हैंड साइड बनती है. नाउ वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज fx मल्टीप्लाई fy. यही है ना, fx multiply fy. As fx is already given, so we can write it. It is cos x minus sin x and 0. Second element is sin x cos x 0 and the third row is 0 0 1. Multiply with f of y. fy क्या हुआ? Replace this x with y. तो x की जगह पे हम y पुट कर लेते हैं. It is cos y minus sin y 0. Then sin y cos y 0 0 0 and 1. Now just multiply them and check whether it is equals to this or not. मल्टीप्लाई करना है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कल हमने डिस्कस की थी, उसी को अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. ध्यान से देखना कैसे करनी है. मैट्रिक्स में हमेशा रो को मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ, याद रखना. और उससे भी पहले एक चीज चेक करनी होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है ना, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वो भी 3/3 है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपलसरी है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम should be equal to second matrix के number of row. ये होना चाहिए. These are equal, so the multiplication is possible. चलिए, जब possible है तो हम इनकी multiply कर लेते हैं. Let us multiply these matrices. First row with first column, तो cos x cos y plus next element. ये तो क्या cos x cos y, next element minus sin x sin y. And the next element is 0. ये आएगा cos x cos y minus sin x sin y and 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गई. अब करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ऐसे होती है ना मैट्रिक्स हमारे पास. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हम लिख चुके. अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो वो ये एलिमेंट बनेगा. फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा. ठीक है, तो यहां से अब हम करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos x sin y, ये माइनस हो जाएगा ना, cos x sin y. This is also minus sin x cos y and this is 0. तो क्या बनेगा? cos x sin y minus माइनस है ना, this is minus of cos x sin y और अगला भी sin x cos y, ये भी माइनस है, माइनस of sin x cos y और उसके साथ प्लस में 0 है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं. अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो मल्टीप्लाई. दिस इज 0, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज अगेन 0. तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा हमारा वो 0 ही बन जाएगा. अब करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन. सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सबसे हो चुकी है. नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y एंड प्लस 0. तो बन गया हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y एंड प्लस 0. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी. माइनस है sin x sin y, एक प्लस एक माइनस है ना, इट इज माइनस sin x sin y. देन नेक्स्ट प्लस cos x cos y एंड देन 0 माइनस sin x sin y and plus cos x cos y and 0. Second row third column multiply. This is 0. Next ये multiply भी 0 हो जाएगी और ये multiply भी 0 हो जाएगी. So second element is 0. इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट. Now third row first column multiply. सेकंड रो की सबसे होगी ना थर्ड रो.
0 plus 0 plus 0 means it is 0. Next, this is 0 plus 0 and plus 0. Again the element is 0. And next is 0 plus 0 plus 1 means this is 1. ये हमारे पास आया 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये बनती है. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे. देखिएगा, cos x cos y minus sin x sin y, यानी कि cos a cos b minus sin a sin b 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. cos a cos b minus sin a sin b, इट इज cos a plus b. क्या होता है cos a plus b? मींस ये बन जाएगा आपके पास cos x plus y बन जाएगा. सेकंड, ये माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y है. माइनस निकाल दिया हमने कॉमन, माइनस कॉमन आउट. माइनस कॉमन आउट तो क्या बच गया sin x cos y plus cos x sin y means sin a cos b plus cos a sin b. sin a plus b होता है, so it is sin a plus b. ये हो गया. और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 था. अब देखते हैं सेकंड रो को. sin x cos y plus cos x sin y, यानी कि sin a cos b plus cos a sin b क्या होता है sin of a plus b. सेकंड और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को देखते हैं. माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y. प्लस का है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं cos x cos y और माइनस sin x sin y कह सकते हैं इसे. मींस cos a cos b minus sin a sin b. cos a cos b minus sin a sin b, it is cos of a plus b. नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 0 है. थर्ड रो 0 0 1 and you can see this is equals to the right hand side. हमारे पास राइट हैंड साइड यही थी, so लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये हो जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन इजी है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज हुए हैं. बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है. इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको. इसी का नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. क्वेश्चन इज so that the product of these two matrix is not equal to these two matrix. Let us suppose this is A and this is B. A multiply B, इधर क्या आया है B पहले लिखा है, A बाद में लिखा है. We have to show that this is not equal. वैसे 2 multiply 3 और 3 multiply 2 इक्वल होते हैं, है ना, होते हैं ना. स्केलर नंबर्स की मल्टीप्लाई में A 2 multiply 3 3 multiply 2 these are equals. स्केलर नंबर्स में a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a इक्वल होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है नंबर्स के सिस्टम में, नंबर सिस्टम के केस में. बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड. याद रखना, a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a इक्वल नहीं होते इन केस ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. बाय चांस कोई क्वेश्चन सिचुएशन ऐसी आ जाए वो एक अलग चीज है, बट इन जनरल a multiply b and b multiply a are not equal. वही चीज इसमें हमें वेरीफाई करके दिखानी है. ये this is a multiply b, this is b multiply a, शो करना है कि these are not equal. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड. लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का रूप वही रहेगा. सो दिस इज -1 एंड +0 एंड +6, यही होगा ना. रो को मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ. सो दिस इज -1 +0 एंड +6. -1 +0 +6, the total is 5. So we can write 5. -1 +0 +6. Now first row second column, multiplication of the first row with second column, ये मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 1 and -2 and +9. 1 - 2 +9. First row with the second column. Now the multiplication of first row with third column. This is 0, then 2, then 12. 0 + 2 + 12. First row का हो गया. अब second row with the first column. This is 0, 0 and
0 means total is 0. Second row with third second column 0 minus 1 and 0, so total is -1. सीधा -1 ही लिख देता हूं मैं. Second row third column 0 plus 1 and 0 means 1 आ जाएगा. Third row first column -1 0 and 0, so -1 हो जाएगा. Third row second column multiplication of third row with the second column, this is 1 minus 1 and 0, 1 minus 1 0. Third row with third column, this is 0 plus 1 plus 0, 0 plus 1 plus 0. ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई. नाउ सिमिलरली on the right hand side multiply them. First row with first column, this is -1 plus 0 plus 0 means -1. डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आपने, ठीक है. First row with second column -2 plus 1 and plus 0 means it is -1. Then first row with third column -3 0 and 0, this is -3. Then second row with first column, this is 0 0 and 1, so this will be 1. Second row with the second column multiplied 0 -1 and +1, total is 0. Second column with second row with third column, this is 0 plus 0 and 0. Third row with the first column 2 plus 0 plus 4, it is 6. Third row with second column 4 plus 3 plus 4, 4 plus 3 plus 4 11. Third row with third column, this is 6 plus 0 and 0 means 6. So you can see the left hand side is not equal to right hand side. This is 5, this is 8 and then 14. 0 minus 1 1 minus 1 0 1, and the second side is -1 minus 1 minus 3 1 0 0 6 11 6, which are not equal, hence it is verified. ये हो गया, यही हमने शो करना था. तो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था यही बताना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए इक्वल नहीं होते. बाय चांस कभी आ जाए वो एक अलग सिचुएशन की बात है, बट इन जनरल दीज आर नॉट इक्वल. तो इसी में नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर a square equals to ka minus 2i and given that the matrix A is first row 3 minus 2, second row 4 minus 2, and identity of course 1 0 0 1, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी 2 by 2 थी तो 1 0 0 1. अगर थर्ड ऑर्डर हो 3 by 3 तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आइडेंटिटी ये होती है. अब हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. k फाइंड करने के लिए इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. आइडेंटिटी गिवन है, a गिवन है, वी नीड a स्क्वायर फाइंड करेंगे. ए स्क्वायर क्या हुआ, मैट्रिक्स में स्क्वेयरिंग डायरेक्ट कभी नहीं होती. जैसे मान लो आपके पास यहाँ अगर 3 तो इसका स्क्वायर कभी आप 9 लिख दो या -2 का स्क्वायर 4 लिख दो, वो गलत हो जाएगा. ध्यान रखना, मैट्रिक्स में स्क्वेयरिंग डायरेक्ट नहीं होती. मैट्रिक्स में स्क्वेयर करने के लिए हमें a मल्टीप्लाई a करना होता है. दिस इज 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 4 -2. We have to multiply this like this. Multiply them. First row multiply with the column. Matrix multiplication यही होगा ना, रो को कॉलम से. तो 3 multiply 3 9 and -8, this is 1. First row with second column -6 and +4, this is -2. Second row first column 4 into 3 12 and this is -8. 12 minus 8 4. Second row second column 4 into -2 -8 -2 -2 plus 4 -8 plus 4, it is -4. ये हमारा आ गया मैट्रिक्स A square. Now put
these values. Now a square is equals to ka minus 2i. Put up the values. A square is 1 minus 2 4 minus 4. It is equals to k multiply matrix A, which is given as 3 minus 2 4 minus 2 and minus 2i, which is 1 0 0 1. कैलकुलेट कर लेते हैं. ये एज इट इज हमारे पास. दिस इज 1 minus 2 4 minus 4 और यहाँ पे k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3k. दिस इज minus 2k then 4k minus 2k. उसके बाद माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, यहाँ प्लस बन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 देन 0 0 और माइनस 2. नेक्स्ट स्टेप राइट साइड प्लस है, ऐड करेंगे. मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ. माइनस 2 को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 2 ये हो जाएगा. ठीक है. यहाँ 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें भी 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस 2 को इसमें ऐड करेंगे ये तो माइनस 2 आ जाएगा. ये ऐड कर दिया मैंने. नेक्स्ट स्टेप इसी में मिला दिया है, इंक्लूड कर दिया है इसी के. जस्ट कंपेयर नाउ. कंपेयर करो और k की वैल्यू निकालो. कंपेयर करोगे आप तो क्या आएगा. 1 is equals to 3k minus 2 यहां से निकाल सकते हो या सेकंड वाले को कंपेयर कर लो. minus 2 equals to minus 2k कहीं से भी निकालो k की वैल्यू. 4 is equals to 4k यहां से निकाल लो. हर जगह से k की वैल्यू सेम आ रही है. यहां से निकालो k equals to 1 आएगा. यहां से भी k equals to 1. हर जगह से सेम वैल्यू आ रही है. सो k is equals to 1. दिस इज द आंसर. ये बन जाएगा हमारा इसका आंसर. तो इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स सिचुएशन में आपके पास a स्क्वायर है या a क्यूब है जो भी है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं करते. मैट्रिक्स में जब स्क्वायर होता है इट मींस a मल्टीप्लाई a. मान लो इसी में a क्यूब आ जाए देन व्हाट विल यू डू. a स्क्वायर मल्टीप्लाई a और करोगे. मींस a स्क्वायर का जो आंसर आया है जैसे आपका यहाँ ये a स्क्वायर है इसको फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a क्यूब प्राप्त होगा. ठीक है. इसी तरह से क्यूब निकाला जा सकता है. तो जो भी है सिचुएशन वो आप फाइंड कीजिए और पुट कीजिए आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे. क्वेश्चन है शो दैट i plus a matrix equal to i minus a matrix multiply cos alpha minus sin alpha cos alpha this matrix. We are given that matrix A is 0 minus tangent alpha by 2 tangent alpha by 2 and 0 and identity matrix is second order well means 1 0 0 1. तो ये हमें शो करना है. आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इजी है. आई मैट्रिक्स आपको पता 1 0 0 1. ए मैट्रिक्स गिवन है इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी. राइट हैंड साइड में i माइनस ए भी हो जाएगा बट i माइनस ए जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इससे. इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोनों साइड को इक्वल शो करने के लिए. क्या आप cos अल्फा को पुट करोगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और sin अल्फा को 2 tan अल्फा बाय 2 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. आइडेंटिटी होती है ना cos 2 थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो यूज की है. इसी तरह sin 2 थीटा इट इज 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये वाली यूज करनी पड़ेगी हमें. ये यूज करके इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे अपने आप इसके इक्वल आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करके देखना. ऐसे हिंट जो जरूरत थी वो मैंने बताई है. आप इजीली सॉल्व कर लोगे. नहीं कर पाए तो मुझे बताना. नेक्स्ट क्लास में उसको फिर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.